The least we can do to honor these brave doctors, nurses, and others fighting this war is to follow their instructions. Save yourself, the community, our country, and the whole world from this virus. सोशल डिस्टेंसिंग को तुम अपनाओ, कोविड-19 से जान न गवाओ। If you're stepping out to buy grocery, make sure that you're at least at a 6 feet distance from each other. Do not touch your face. Come back, wash your hands for at least 20 seconds. Sanitize everything that you've touched. If you're a righty, use your left hand to open all the doors and turn knobs. Stay positive, stay fit, stay at home. इस कठिन वक्त पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स का, सारे डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पुलिस फोर्स का और सारे कर्मचारियों का जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचा रहे हैं। आप सभी लोग उनका सहयोग दें, हमारी सरकार का सहयोग दें और प्लीज अपने घर पर रहें। Namaskar and welcome to Doctor Speak. India is in a lockdown till the 3rd of May and it's showing good results. The rate at which the virus is spreading has slowed. It is doubling in more than 6 days. The method under lockdown is a process of firefighting, isolating pockets where the virus is and taking strict measures to arrest its spread. This is the most appropriate way of dealing with the threat of coronavirus outbreak at the moment, and all of us have to play our part in it. This program puts you in direct touch with specialists and experts. Knowledge about the virus is developing every day, but in the midst of all the information is an equal amount of misinformation. So this is the time to get your doubts cleared. For the next 1 hour, our medical experts will answer all your questions. Our numbers are 011-233-87031, 011-2309-7655. Our lines are open now for an hour, 2 to 3 p.m. Call us and ask your questions. And well, I'll introduce you to my guests on the show, our experts for today. A very warm welcome to Dr. Naval Vikram and Dr. Yasir Islam here in the studios, and Dr. Ravikant, Director of AIIMS Rishikesh, who joins us on Skype. A very good, big welcome to all of you. Well, first of all, when we talk about the lockdown, and it's been 40 days since it began. Let's try and understand what it means. Dr. Islam, क्या कहेंगे आप अभी के ट्रेंड्स के बारे में? चेन कैसे टूटा है इंडिया में? देखिए, जो लॉकडाउन से पहले स्थिति थी उसमें जो डबलिंग रेट था अराउंड 2.5 to 3 डेज का था, एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन द डबलिंग रेट इज अराउंड 5 to 6 डेज. सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फ्लैटन द कर्व. जो ये केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अब हम इन केसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं. बट येस, वी शुड बी वेरी केयरफुल, शुड नॉट बी वेरी ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट इट, बिकॉज द रियल पिक्चर विल इमर्ज वंस द लॉकडाउन इज ओवर. जी, Dr. Ravikant, there is an idea that the lockdown is it is about the purpose of the lockdown. It is to slow the progression of the disease and not to eradicate it. Many people have confused the lockdown and its lifting with a cure for the disease. Could you explain more to us so that our audience understands it better? देखिए, पैंडेमिक हमारे यहाँ पर हर 100 साल में होता रहा. जब स्मॉल पॉक्स का पैंडेमिक हुआ लैटिन अमेरिका में तो 30 मिलियन लोग मरे. जब 1918 में स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक हुआ तो करीब 50 मिलियन मरे. जी. अब आज के हालात में लॉकडाउन का बेसिक फायदा ये है कि सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग करके हम उस एक्यूट क्राइसिस का नंबर कम कर रहे हैं और साथ में अस्पताल को तैयार भी कर रहे हैं कि अगर मरीज आते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद तो क्या हम तैयार हैं. और इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बजाय मिलियंस में ओनली अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैजुअलिटी विल बी देयर और इन ओवरऑल सिचुएशन विल बी मच मोर मैनेजेबल. So lockdown is a process by which it gives us time to prepare, number one,
इट गिव्स अस द टाइम फॉर पॉपुलेशन को भी समझाता है कि इसको कैसे बच सकते हैं आप, और साथ में जो मेन हॉटस्पॉट हैं उनको ट्रेसिंग करके आइडेंटिफाई करके मिनिमाइज कर सकते हैं। जी, Dr. Vikram, in 3 months, India has more than 15,000 cases. A very good record when we compare it with many other countries. कहा गया है कि पैंडेमिक में एक पीक आती है and then it subsides. Could you explain to us what we are seeing right now in India? See, right now we are much better off than other countries, and in several countries this pandemic has already reached its peak. But in our country, probably we have not reached the peak as of now, because we had initiated the lockdown measures quite early as compared to the other countries. So in the rise in the number of cases over the time has been slow as compared to the other countries. So probably we have not reached our peak as of now, and once the lockdown opens, probably the cases are going to rise, and then we may reach our peak. Ji. And it's doctors who know the ground reality more than anyone else. So, well, Dr. Ravikant, tell us how hospitals कैसे cope कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, अधिकतर हॉस्पिटल जो हैं उन्होंने पहले तो इसकी डायग्नोस्टिक किट को मजबूत किया है कि इसके 2 स्टेप होते हैं। RT-PCR से हम लोग न्यूक्लिक एसिड और RNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा स्टेप होता है कि इसको डायग्नोज करते हैं। तो पहला स्टेप में RNA एक्सट्रैक्शन है, दूसरे स्टेप में RT-PCR है। इन फैसिलिटी को जहां जहां पे नहीं था वहां पे तैयार किया गया, और जहां पे ऑलरेडी था उसको ऑगमेंट किया कि 12 या 15 केस नहीं, 100, 200, 300 केस एक बार में टेस्ट कर सकें। तो पहली बार में तो डायग्नोस्टिक को ऑगमेंट किया गया। सेकंड स्टेप ये है कि अस्पतालों को, जैसा ऑलरेडी बताया जा चुका है, कि 3 हिस्सों में बांटा गया। टोटल जो बीमारियां होंगी उनकी 80 से 85% को एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आइसोलेटेड बेड की जरूरत पड़ेगी। 15% बेड को, 15% मरीजों को स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, जिनमें 5% लोगों को वेंटिलेशन फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर ये बहुत ज्यादा जनता बीमार पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा बेड्स की जरूरत है। तो लॉकडाउन का फायदा ये है, इमीडिएटली हम उसको स्लो डाउन कर दिया है, और साथ में हम लोग तैयार हो गए हैं कि कितने मरीज कहाँ पे रखे जाएंगे, वेंटिलेशन की कितनी फैसिलिटी है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की कहाँ फैसिलिटी है, और ये पूरे देश भर में एक युद्ध स्तर पे काम हुआ है सरकार के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा काम हुआ है। Ji. And Dr. Islam, when we talk about, now that the lockdown is being eased, from tomorrow onwards, it will be eased and various sectors will be opened. But, well, I think the responsibility of each of us to continue with, with these measures, such as social distancing, such as maintaining personal hygiene, it still remains. The onus will now be on each individual. Yes, true. See, it is very important to understand that lockdown is not the treatment of coronavirus. It Right. is just to contain it so that it doesn't rise rapidly, it doesn't put a pressure on our existing healthcare system. Yes, after 20th, there is some sort of mild ease of these restrictions, but yeah, we as an individual or as a society, we have to be more careful or more about the restrictions now. We have to maintain the social distancing, which should be the norm in the coming months or probably year also. Right. Social distancing and the personal hygiene, that should always be taken care of, and that is the basic reason why so much promotions and is being done regarding Awareness. the awareness Right. is done for the social distancing and the personal hygiene. Right. Right. Right now we have a caller with us, Parul from Faridabad. Parul ji, namaste. आपका प्रश्न पूछिए. हाँ जी, नमस्ते. I would like to know whether the use of ACs or eating cold food can increase the risk of COVID, as told by many people. Ji. Dr. Vikram, would you like to answer? Using air conditioner is, I understand AC. Using AC is not going to increase the risk of infection, provided you are using the AC in your room at your home.
you should avoid centrally air conditioned areas, because the chances of virus being in the air and being transmitted may be high in these areas. And at home you can use your window AC or a split AC also, but you can keep your other window slightly open so that there is circulation of air. The second thing is eating cold food is also not will not also lead to increase in the risk of this infection, provided the food material or whatever you are having is not contaminated by this virus. So it's always better that if you can heat your food or microwave it for a while and then consume it, so that would be safe. But yes, cold food does not increase the risk. Right. Cold food does not increase the risk. Well, talking about, how the curve is to be flattened. Yes. When we talk about flattening the curve, could you explain it more, in detail to our viewers? See, as you can see, initially the doubling rate was high. In fewer number of days, the cases were doubling. But now, the number of days of doubling has increased, like 5 to 6 days. So, as more and more, the coronavirus is very a difficult virus, not in terms of the disease it causes, but the rapidity, the way it spreads. Right. Its spread rate is very high. Every person who gets infected spreads around the virus to around 2.5 to 3%. So those 3% will again spread the virus to further 3. So if you calculate, it will lead to larger spread in the community. Right. So what this lockdown did was, this community spread was halted and the number of cases slowed down. Right. So that helped the government or even the healthcare workers to expand their healthcare systems, to provide more number of testing, number of beds and the ventilator, which may be required once the cases increase, so that we are ready with the facilities whenever the patients come to the hospitals. Right. Well, joining us now is another caller, Iqbal Singh from Ludhiana. Iqbal साहब नमस्ते, आपका सवाल कीजिए. गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को. इकबाल सिंह, मेन बाजार, हठूर डिस्ट्रिक्ट लुधियाना. मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है भी हम डेली रीड करते हैं, मैगजीन रीड करते हैं, ठीक है ना? वो अलग अलग हाथों से होकर हमारे पास आता है, क्या उसमें से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? फ्रॉम मैगजीन के बारे में पूछ रहे हैं जो एक्चुअली the newspapers and the magazines, they are safe. It has been time and on emphasized that it doesn't spread through the newspapers and the magazine. It's safe. You can take your daily newspapers and the magazines. It doesn't spread through the paper. जी. Well, going across to Dr. Ravikant now. Ravikant ji, we have heard, हमें सुनने में आया है कि a pandemic takes, around 6 months, to totally disappear in previous cases. And this is what we've heard as lay people. We do not really know more details, and that's what we'd like to know from you. In China, however, we are receiving news that, cases have, returned. And so could you explain this to us? How true is this information about the duration of the existence of a virus? Is there ever a time that the virus can disappear? देखिए, कोरोना वायरस हमारे यहाँ पे सेंचुरी से है, लेकिन ये जो नया म्यूटेशन है, ये इसके मारे हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है. इनका नॉर्मल कोर्स क्या होता है कि 2 से 3 साल लग जाते हैं इनको जाने में. और जो कॉक बर्लिन है जर्मनी का, उनकी फोरकास्ट री इन्फेक्शन, देयर बी सर्टेन पॉपुलेशन इन्फेक्शन ऑल द टाइम. तो जो सरकार बार बार फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाउ टू स्नीज, जो बेसिक मैनर्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसको लगातार हमें रखना है. लेकिन सॉल्यूशन कब आएगा? सॉल्यूशन जब आएगा जब पॉपुलेशन का 70% से ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाए, एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, और उस टाइम तक हम लोग अपने एल्डरली को बचा लें, और जो यंगस्टर्स हैं दे कैन मैनेज दिस थिंग वेरी वेल, और बाद में दिस विल बी एक्सेप्टेबल टू पॉपुलेशन लाइक अ फ्लू एज इट हैपेंस एवरी ईयर. Right. So what we basically understand from this is that, we will acquire immunity once, a majority of the population is infected and recovers. Yes. Is that what? Yes. Absolutely. Yes. Majority it will be infected, but recover because the youngsters manage this disease much better.
एंड उसमें मिनिमम प्रॉब्लम होगी और बाद में ग्रेजुअली जब तक 2 या 3 साल तक इसकी वैक्सीन दिया जाएगी एंड देन जो रिस्क पे है जनता, एल्डरली या विद कोमॉर्बिडिटीज, उनको भी हम बचा पाएंगे। और एक बार वैक्सीन आ गई तो ईयरली जैसे हम लोग H1N1 या फ्लू को मैनेज करते हैं या और बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक ऑर्डिनरी जुकाम बन के रह जाएगा। जी। So Dr. Vikram, are we saying now that there is no going back to normal? Probably, because we have to follow. We cannot go back to our normal ways, which we were doing pre-lockdown era. Now I think this social distancing, physical distancing, and hygiene, hand hygiene, self hygiene. So all these things, probably once things open up gradually, like the shopping places open up, restaurants open up, and all those things open up, and these things have to be there and these things have to be followed. So, and more possibility of working from home as much as possible, and as much as less physical contact as possible in your workplace and other areas. So this, I think, has to be there, and it will go on for a quite long time. So normal, yes, we won't be back to normal in near future, I would say. Right. Yes. Dr. And Islamudin. people are expecting, because I talk to many people, they are thinking, when will it end? Right. Like I always tell them, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन गवर्नमेंट बोल देगी अब कोरोना वायरस खत्म हो गया है, अब आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है. इट विल रिमेन. Obviously the severity and all will like depend upon how early we acquire the herd immunity, but yeah, we have to, as sir told, that we have to have this virus there. It will remain for many months or probably an year also, till we acquire the immunity or till we get the vaccine. Right. And Dr. Ravikant, would you like to add to this that there is no going back to normal after this? Are we, looking at a new world with new systems of communication, a new style of working, everything totally different from now on? इसमें मेरा ये कहना है कि बजाय हम लोग ये सोचें कि हम नए तरीके की तरफ जाएंगे, भारतीय संस्कृति बहुत समय से, हजारों साल से कह रही है कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए, और जैन धर्म और कई सारे ये भी कहते हैं कि मुंह पे मास्क लगाना चाहिए. कुल मिला के जो भारतीय संस्कृति की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है वही दोबारा रिपीट हो रही है, और वही हमको करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए. जो नई साइंस आ रही है कि 14 फुट यानी कि करीब करीब इतनी दूर तक ये वायरस एरोसोल से जा सकता है, जो कि रिपोर्ट आ रही है आईसीयू की. इसका मतलब खाली 6 फुट की बात नहीं है. अगर कोई छींक रहा है और वो अपनी बेसिक सिविलाइज्ड मैनर्स में अपनी आम पे नहीं छींक रहा है, बजाय कि वो हाथ पे छींक रहा है या कोई मास्क नहीं लगाए हुए, तो ये पुरानी संस्कृति को दोबारा हमें अमली जामा पहनाना पड़ेगा. और अपना एक जो नया सिस्टम है जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो बहुत पुराने जमाने में बार बार टेस्ट हो चुका है, और वही हमें करना पड़ेगा. जी. एंड जॉइनिंग अस नाउ इज अनदर कॉलर हरीश फ्रॉम बिहार. हरीश जी नमस्ते, आप सवाल कीजिए. नमस्कार मैम. दिस कोरोना वायरस इज वेदर इट इज मैन मेड और इट इज बर्ड फ्लू. Right. Whether it is man-made or whether it is a natural virus, like Dr. Islam. Till now, the evidence which has come out that it has spread from the seafood market or Wuhan, probably from bats to the humans. See, this coronavirus is not new virus. It is known to exist in the nature. There are various zoonotic diseases which usually are transmitted from animals to humans, and this is one of the zoonotic diseases which probably had spread from the bats or other wild animals to the humans. So, till now this is the evidence, but there are various rumors going on which don't have any basis. Right. There's no proof of that, and it has been quashed, Harish Kumar joining us now from Amritsar. Harish ji, नमस्ते, आप अपना सवाल कीजिए. मैम सवाल मैं ये कर रहा हूँ, मैम गवर्नमेंट कितने कितने बता रहे हैं, ये वो है कोविड के बारे में मेरा क्वेश्चन है मैम. जी.
मैम जी जैसे कि ये थैलेसीमिया करवा रहे हैं, मान लो अगर करवा रहे हैं, जी गवर्नमेंट जो है अपने वैसे ही मेरे में मैं ये बात करना चाहता हूँ, मेरी बात को श्योर कीजिए कि मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन ब्लड पर्सन के खून ब्लड हैं उनमें से आपको मिल सकता है क्या? ऐसी प्रोसेस चल रही है कोई? और मैंने अपने काफी मतलब कि अदारे में सरकारी डॉक्टरी लाइन में नंबर डाल रखे हैं, मुझे आज तक इसका जवाब मिला मैम जी। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। यस, आप फिर से आपका सवाल दोहरा सकते हैं, आपका नेट कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। हाँ जी जी, आप फिर से पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन मैम फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे मतलब कि मेरे खून के कोई कोविड का है जो उससे लड़ सकता है। अच्छा, अबाउट फाइटिंग कोविड-19, क्या कुछ अभी तक वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं या क्योर के बारे में पूछ रहे हैं, पॉसिबल क्योर? देखिए अभी तक इस पे शोध चल रहा है कई देशों में, कई सारी कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में, और अब हमारी कंट्री में भी इसके ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है और जो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलाज के लिए कोई पक्का इलाज जिसे कहे कि रामबाण इलाज, इसका अभी तक कोई नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जो और चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो दवाइयां कुछ स्टडीज में देखी गई हैं बाहर की, वो इफेक्टिव हो सकती हैं, तो उसके ऊपर भी शोध चल रहा है। और हम एक पूरे वर्ल्ड में एक ट्रायल चल रहा है जिसमें कई सारी दवाइयों को देखा जा रहा है। 4 से 5 आर्म है उसके, उसमें अलग अलग दवाइयों को देखा जा रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। तो ट्रायल दवाइयों के यहाँ भी शुरू हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में भी चल रहे हैं और आगे आने वाले कुछ समय में ही मेरे ख्याल से शायद जून जुलाई तक कुछ पता लगेगा कि कौन सी दवाई है जो इसमें बेहतर है। सब में अभी तक पक्का श्योर इलाज कुछ नहीं है। इसमें मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस डेथ वारंट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी का मतलब अराउंड 80 to 90% केसेस खुद ब खुद रिकवर होते हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से। जितने भी वायरल डिजीजेज हैं इनमें ज़्यादातर इम्यूनिटी, आपकी जो अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, यही बीमारी को ख़त्म करती है। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों में आती है जिनको कोई पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या जो हमारे 65 साल से ऊपर लोग होते हैं, उनमें भी ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस हो गया तो उनकी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। हमने जो देखा है, जो अभी हम केसेस देख भी रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, अब चूंकि हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते हैं क्योंकि अब दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस एडमिट हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक। इनफैक्ट जब कई मरीजों को हम ये बोलते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, तो उनका ये होता है हम क्यों एडमिट होएं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट स्टिल अभी हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको हमें हॉस्पिटलाइज करना ही करना है। जो आगे आने वाले टाइम में शायद पॉलिसी चेंज हो जाए, माइल्ड टू एसिम्टोमेटिक केसेस को शायद बाद में हम एडमिट भी ना करें। बट अभी ये मान के चलिए कि अगर गॉड फॉरबिड कोरोना वायरस हो भी जाता है तो आपको ठीक होने का ज्यादा चांस है रादर देन कोई सीरियस कंडीशन होने का या मृत्यु होने का। Right, very reassuring words there from our doctors on the show. Joining us now is another caller, Vidyadhar. Vidyadhar जी, नमस्ते। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहता हूँ कि एक तो मेरे हार्ट की दिक्कत है, मैं दवाई ले रहा हूँ हार्ट की। जी। हेलो। जी। एक तो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है और मेरे स्टेंट डला हुआ है। एक मेरे वो खांसी हो जाती है एलर्जी की वजह से, तो इसकी वजह से मेरे को क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जी, क्या ध्यान रखने की जरूरत है? राइट। डॉक्टर रविकांत, वुड यू लाइक टू आंसर? देखिए, इसको अगर देखा जाए कि आपको जब तक वायरस नहीं लगेगा, जब तक आप फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म को पूरा करते रहेंगे, मास्क जो आपके पास विजिटर आए वो मास्क लगा के आए, आप कहीं जाएं तो मास्क लगा के जाएं। इसके अलावा आप कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहां पे किसी अनजान आदमी से एसिम्प्टोमेटिक से आपको वायरस लग सकता हो। आप अपना रिपीटेड हैंड वॉश करें जब भी कोई काम करना है।
इसके अलावा कोई और आपके पास वो नहीं है कि आप इस बीमारी से बच सकें। फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, अवॉइड द क्राउडेड एरिया आपके लिए मेन ये है। जब तक आप ऐसा करेंगे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और दोबारा उस बात को जो अभी कही गई है, मैं बिल्कुल एम्फेटिकली कह सकता हूं, 90 से 95% पॉपुलेशन को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। 5% से 7% प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और वो भी जो कॉमोर्बिडिटीज के साथ में। लेकिन अगर वो अपना ध्यान रखें और उनके जो परिवार वाले जो काम कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि उनसे बहुत ज्यादा मिले जुले नहीं, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस रखें, तो कोई समस्या नहीं होगी। Right. Well, joining us now on the phone line, Dipankar from Assam. Dipankar ji, yes, you can ask your question. Hello. Right. Hello. Right. You can lower the volume of your TV because we cannot hear you. Hello. My question is that we are talking about the social distancing amongst adults. Right. But the children who are aged between 10 or smaller than that, or 10 to 15 years, while going to school, how they can maintain this social distancing? Right. Because the children are not very prone to all this wearing masks and all these things. Right. Right. Well, Dr. Vikram, would you like to answer? Yeah, I think right now all the schools are closed, and they are likely to be closed for quite some time as of now. Children are not, in the current situation, they are not being found to be developing the disease. Although they may develop the infection, but they may not show any symptoms. So they can be asymptomatic, but chances are that they may be able to spread the disease to others. So I think social distancing norm as it is followed in adults also should be followed in children. And once the schools open up, then how it has to be done, that is one big challenge, because classrooms, the distancing of children, that has to be modified. So that proper guidelines and other things may come out in future. But as of now, I think children also should be encouraged to use masks, and they should remain slightly away from elderly people at home, or elderly or people with other comorbidities as mentioned earlier, so that they don't spread the disease to them, because children mostly will not develop any symptoms, but they may be carrier or they may spread the infection to others. Right. And well, we are also taking questions on our Facebook and Twitter pages. One question that has come up from one of our viewers is, has WHO been able to take decisions that are important to check the spread in time, looking at, what has happened across the world? What would you say? See, there may be certain ifs and buts, but yeah, WHO is doing a good job till now. And leave apart WHO, our government has been very proactive in containing the disease. Right from the day one, when the China announced that there is a spread of some novel virus and which is causing pneumonias in the population, our government started screening the patients who started coming from the China or from other countries, and our government has been very proactive in containing the disease, and the results are in front of you. The timing of the lockdown, the other measures which the government has been taking, and the results are in front of you when we compare the number of cases in India and other Western countries. Right. Considering India's population, Yes. close-knit families, it has definitely showed such great results. Yet, now that, it looks like the lockdown is going to be eased, there are other people who have, viewers who have sent in some questions that really do require clarification. Once again, we have a reader, a viewer asking us, if we seriously obey lockdown rules, then how many days will it take to get rid of coronavirus in our country? Well, Dr. Ravikant, once again, I approach you to, clarify once again. देखिए, कोरोना वायरस 2 साल से पहले नहीं जाएगा, पहली बात तो बिल्कुल पक्का है। आपको कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अब मई 25 को है और मई 26 को नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअल इन्फेक्शन से जो यंगस्टर्स में एक इम्यूनिटी बढ़ेगी,
और एक इम्यूनिटी का एक क्रिटिकल पॉइंट है, वो जब पूरा हो जाएगा, दैट इज 70% ऑफ पॉपुलेशन, तब आप ग्रेजुअली इसको जुकाम की तरह से हैंडल कर पाएंगे और तब तक वैक्सीन और दवा भी आ जाएंगी। इसलिए लॉकडाउन पीरियड में प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है जी। एक भूख के मारे डेथ है, एक बीमारी के मारे डेथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के मारे डेथ है। सरकार को तीनों चीजों का एक साथ समाधान करना है और एक बैलेंस डिसीजन लेना है, और इसके लिए दुनिया भर में ग्रेजुअली लॉकडाउन को ईज किया जाएगा ताकि इकोनॉमी भी चल सके, इलाज भी हो सके और एक हर्ड इम्यूनिटी भी बन सके। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। राइट। अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हितेश फ्रॉम दिल्ली। हितेश जी, आपका सवाल कीजिए। I want to ask, now it has been seen that people are asymptomatic. Those Right. who don't have any symptoms. So let's suppose I am somebody, who has got no symptoms, but still, I can, I can infect other people also. But if I do not have any symptoms, then is it a possibility that if I do not cough, if I do not face any difficulty breathing, that I can also be affected and die from the disease? Meaning, it can be fatal for me even if I am not showing any symptoms. Right, Dr. Vikram? No, if you are infected and you're not showing any symptoms, then yes, you are likely to infect others. And that is why it has been advised that everybody should wear masks whenever you're going out, or masks, or cover your nose and your face, so that you don't infect anybody else in your surrounding area. So this is the main reason why it has been told. If you are asymptomatic, most likely over the period of time you will recover. Many people who are asymptomatic recover without any symptoms. So just be reassured, if you are not symptomatic, you are not likely to develop a severe form of disease and die from it. Only individuals who develop a severe form of disease, which generally the symptoms develop by about day 5 or 7. So at that time, the severity of symptoms peak, and those are the individuals who can be in trouble, and particularly elderly individuals. So you are not likely to, if you are asymptomatic, no problem, but you are likely to infect others, so cover your face with a mask or cloth always and follow the hand hygiene. Right. Well, Dr. Ravikant, हमारे एक और Twitter follower has asked this question. Has WHO taken too much time, in declaring COVID-19 a pandemic? आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें एपिडेमियोलॉजिकल एक स्टडी का एक अलग स्पेशलाइज्ड विंग है, और एपिडेमियोलॉजी विंग कहता है कि जब इतने देश में इतनी जगह में बीमारी फैल जाए तब हम इसको पैंडेमिक कहेंगे। जी। जब तक वो डेफिनेशन पूरी नहीं होती, अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। जी। WHO ने बिल्कुल ठीक टाइम पर उस जब डेफिनेशन को पूरा हो गए तब कहा, इसलिए WHO की पैंडेमिक को डिक्लेयर करने की कोई गड़बड़ी नहीं। जी। जैसे from what our doctors, our experts have told us on the show, their words are very reassuring, but the question is, how are people dying in thousands by the day? It is because the sheer number of cases, because the rate of spread of this virus is very high as compared to the other viruses. So if it spreads to lakhs and lakhs of people, the number of cases percentage wise will increase as far as death is concerned, or as far as those who require ICU or critical care, because the sheer number is so big that you will get cases who require ICU, who require ventilation, or who will die because of the sheer number of cases, because of the rapidity, the way it spreads. Right. So, Dr. Vikram, was there ever a time when previous, flu-like epidemics, when previous flu-like epidemics had this kind of an impact? Yes, this kind of impact was seen in the earlier epidemic of 1918. At that time, a lot of people died. Subsequently, there was another flu. And has that virus disappeared? No, that virus has not disappeared. That virus is very much in the community and it is there. And that is the flu virus, and most of us must have had the infection many times in our lifetime.
Only individuals who are again elderly and comorbidities, they are more likely to die from that. So now this is the one pandemic which has become quite big as compared to the earlier pandemics. But since now we are better prepared, we have better modes of investigation, we have better modes of containing the disease, better strategies than before. So we have been able to limit so far the number of deaths that are occurring as compared to the earlier pandemics where the number of deaths were very high. So this time it is relatively less, particularly in our country, in India, as we compare it to the other countries, our death rate is very less as compared to that. So that is something good. So we got a time to prepare ourselves. Even the lockdown period has given us a time to increase our number of beds, ventilators. So even if it becomes severe in the coming days, I think we are prepared to handle the situation. Right, very heartening to hear that. Sunil from Delhi joining us now on the phone line. Sunil जी, आपका सवाल कीजिए. जी, मेरा सवाल ये है जी कि अगर एक पेशेंट को कोविड-19 हो जाता है जी और वो ठीक हो जाता है, तो उसको दोबारा से हो सकता है क्या? देखिए, एक बार कोई भी वायरल बीमारी होती है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो उस वायरस का जो स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी मिल जाती है और उस वायरस से वो इन्फेक्ट नहीं हो सकता दोबारा. बट यस, एनी वायरस, जो भी वायरस होता है ये हमेशा म्यूटेट कर जाता है, उसके स्ट्रेन अलग हो सकते हैं. हो सकता है ये स्ट्रेन से वो इन्फेक्ट ना हो, कोई दूसरा स्ट्रेन आए. बट यस, जो अभी का कोरोना वायरस है, अगर इससे कोई इंसान इन्फेक्ट होता है और बाद में रिकवर कर जाता है तो प्रोबेबली वो बिल्कुल सेफ रहेगा कोरोना वायरस से. इसमें कुछ आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि किसी को इन्फेक्शन हुआ, वो रिकवर करके नेगेटिव हो गया, मगर कुछ हफ्तों के बाद फिर से सिम्टम्स डेवलप होते हैं और फिर से वो पॉजिटिव आ जाता है. इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं. तो उसमें अभी तक जो रीज़न है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत कम हैं. तो इसके में शोध जारी है और कारण क्या है वो देखा जा रहा है. ये हो सकता है कि एक वायरस जो है वो सप्रेस हो गया हो, और जब वायरस कम हो जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, कॉपीज होती है बॉडी में, वो कम हो जाती है. तो वो जब नेगेटिव आता है उस समय वायरस सप्रेस होता है तो बॉडी में रहता है, मगर वो डिटेक्ट नहीं होता है. कुछ समय के बाद अगर वो रीएक्टिवेट हो जाता है तो उसकी कॉपीज फिर से बढ़ जाती हैं और फिर वो डिटेक्ट होता है. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि वो अलग तरह का स्ट्रेन, ये वायरस जो है वो बड़ी जल्दी म्यूटेट करते हैं, तो एक स्ट्रेन से हुआ और कुछ समय बाद फिर वो दूसरी स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो गया तो वो दोबारा पॉजिटिव आ सकता है. राइट. डॉक्टर रविकांत, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? देखिए, इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो नॉर्मल फ्लू है, जिसको हम लोग H1N1 कहते हैं, तो हर साल उस फ्लू का स्ट्रेन अलग होता है, इसीलिए हर साल उसकी वैक्सीन अलग बनती है. कभी H1N1 होता है, कभी H1N15 होता है, कभी H1N17 होता है, और हर साल वो जो पिछले साल आपने फ्लू की वैक्सीन ली है वो काम नहीं करती. और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है वो उस समय डिटेक्शन फेज में ना हो, क्योंकि हम लोग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में भी देखते हैं कि वायरस बॉडी में है लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा है, 5-6 दिन के बाद आता है. ऐसे ही बाद में भी हो सकता है कि हो सकता है दोबारा मल्टीप्लाई ज्यादा कर रहा है. तो एक तो स्ट्रेन की बात है और मल्टीप्लिकेशन की बात है. वायरस का डुप्लीकेशन फैक्टर का भी एक पॉइंट है. लेकिन आज के दिन बड़ी समस्या ये है कि ये जो वायरस है इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू H1N1. इसलिए एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी इन्वॉल्व इन अ शॉर्टर टाइम, और उससे हमें बचना. Right. And as we try to understand it further, another caller joins us from Delhi again, Geeta. Geeta ji, namaste. नमस्ते. Right. आपका सवाल कीजिए. जैसे मैं डायबिटिक हूँ और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती हूँ, और 20 तारीख के लिए हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें ऑफिस ज्वाइन करना है, जबकि मैं IT प्रोफेशनल हूँ और अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रही थी. तो उस केस में कितना सेफ है कि मैं ऑफिस में जाके अब काम करूं? जी, डॉक्टर विक्रम. आप ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से ऑफिस जा रहे हैं, और
सोशल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और का जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आप ऑफिस जाएंगे और हैंड्स हाइजीन इसका ज़रूर ध्यान रखना है। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर डायबिटिक आप हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहती है तो फिर इन्फेक्शन होने का भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो शुगर कंट्रोल में रखिए और ऑफिस आप जा सकते हैं। आई एम श्योर कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अगर ये शुरू किया है तो और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए ऑफिस में भी, तो वो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट डॉक्टर रविकांत, जैसे आपने कहा कि अ हर्ड इम्यूनिटी हैज टू डेवलप, तो what would you advise our viewers कि there is no need to fear when about getting infected, because once a majority of the population is infected and they are cured, the better it is. देखिए, मेरा ये मानना है कि फेट अकम्पली है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट होगी, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि उन्हें काम पे जाना है, उन्हें अपने जॉब पे जाना है, उनको अर्न करना है। कोई भी 3 साल घर में रह के इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकता। और इन जो पॉपुलेशन है इसमें जिसको हम कहते हैं कि केस फैटेलिटी रेशो, जो मुश्किल वाली घड़ी है, बहुत कम परसेंट है, 0.5% के करीब है अगर वो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है। इसका मतलब है नॉर्मल डिजीजेस, इवन सड़क पे ट्रॉमा का रेट इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा हमने देखा है कि अमेरिका का भी इस साल का फ्लू रेट कोई कम नहीं है। तो जो कैंसर है, बाकी बीमारियों का भी बड़ा कॉमन रेट है। इसको देखते हुए एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म के साथ, हैंड हाइजीन के साथ, मास्क के साथ, और जब ये पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी तब तक हमें वैक्सीन और दवा भी मिल जाएगी, उससे हम एल्डरली पॉपुलेशन को भी बचा पाएंगे। तो इसको हमें एक साइंटिफिक बेसिस पे ग्रेजुअल लॉकडाउन को खोलना है, लेकिन साथ में जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट में सख्ती बनाए रखना। राइट। हमें बेसिकली 3 लेवल पे सोचना चाहिए। एक तो जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है वो तो ठीक है, वो गवर्नमेंट ले रही है, बट पर्सनल लेवल पे भी आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया तो आप रूटीन अपना फॉलो करने लगे, आपको ये रूटीन आगे भी चलाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना। गॉड फॉरबिड अगर इसके बावजूद भी आपको फीवर या जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स आते हैं तो घबराइए नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस रिकवर खुद हो जाते हैं, दे रिकवर ऑन देयर ओन। तो एक बार इम्यूनिटी, जैसे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो वायरस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इन द सेंस कि कम्युनिटी में रहेगा बट सिम्टम्स विल बी माइल्ड। राइट। एंड जॉइनिंग अस एट दिस पॉइंट फ्रॉम दिल्ली अनदर कॉलर सचिन। सचिन जी नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? जी मैम, अगर किसी व्यक्ति को कफ आ रहा है और कफ के साथ म्यूकस है, और कोई और सिम्टम्स नहीं है जैसे फीवर और बॉडी में पेन या जैसा और कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या उसको टेस्ट कराना चाहिए या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? राइट। डॉक्टर विक्रम, अगर खाली कफ है तो ये देखना जरूरी कि कितने दिन से है। सबसे पहली चीज़ कि अभी जो गाइडलाइंस हैं टेस्टिंग के लिए, उसमें अगर किसी को ये सिम्टम्स जो हैं फीवर, कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या किसी की ट्रैवल की हिस्ट्री है, या किसी की ट्रैवल की किसी ने किया है उसे कांटेक्ट की हिस्ट्री है, या किसी डिजीज़, किसी इन्फेक्शन जिसको है उसमें कांटेक्ट की अगर पॉसिबिलिटी है, या आप हॉटस्पॉट एरिया से जो डेजिग्नेट किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, या वहाँ से हैं, तो आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए और फिर वो आपकी टेस्टिंग को फैसिलिटेट किया जाएगा। मगर अगर खाली कफ है और म्यूकस है तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो। कई लोग अगर हैं, ब्रोंकाइटिस भी होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से है। जैसा मैंने कहा कि ये जो कुछ कंडीशंस हैं, अगर इसमें से कोई आप फुलफिल करते हैं तो आप कांटेक्ट करिए हेल्पलाइन में, फिर आपके टेस्टिंग की फैसिलिटेशन की जाएगी। राइट। डॉक्टर इस्लाम? यस, मेन है इसका 98% to 100% में फीवर आना बहुत ज़रूरी है, और फीवर भी इसमें 100-100.4 आता है।
फीवर के साथ कफ यूजुअली इसमें जो देखा गया है ड्राई कफ है, और इसमें ज़्यादातर आजकल जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस भी इस टाइम काफ़ी सोसाइटी में है। तो सोर थ्रोट और रनिंग नोज यूजुअली इसका सिम्टम नहीं होता है, ज़्यादातर वो इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं। कोरोना वायरस ज़्यादातर फीवर ड्राई कफ करता है। अगर आपको ये सिम्टम हैं और अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तब आपको टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल जो URI सिम्टम्स, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, और अगर आपका किसी के साथ संपर्क नहीं हुआ है तो आपको कोरोना वायरस नहीं है। And right. And when we talk about precautions we should take, खाने पीने के मामले में क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा अभी से? खाने पीने के मामले में आप नॉर्मल आप पौष्टिक आहार लीजिए, या अगर आपको किसी तरह के खाने का परहेज आपको बताया गया है किसी कंडीशंस, तो वो फॉलो करिए। खाने में पका खाना खाएं। कोशिश ये रहे कि कच्चे जो फल या सब्जियां जो हैं वो कच्चे सब्जियां जो हैं वो कच्ची कम खाएं, ना खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फल हैं, अगर वो फल कोशिश ये रखिए कि वो जो ऐसे फल खाएं ज़्यादा जिनका आप छिलका उतार सकें, जिसको छिलके के साथ ना खाएं, छिलका उतार के खाएं, वो बेहतर रहेगा। और फल और सब्जियां, ये खाने की जो भी चीज़ें हैं, अगर आप बाहर से खरीद के जब भी लाते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से पानी में या गर्म पानी में धो लीजिए, ताकि आपको अगर इन पे बाहर कहीं लोग किसी ने इसको छुआ है तो ये इन्फेक्शन आपको ना लगे, उसके बाद ही इनका सेवन करिए। Right. So basically what we are understanding is that it is a flu like any other. पर इतना खतरनाक कैसे हो जाता है? Like what are the what is the final stage? Can I ask? It causes pneumonia. Pneumonia is the symptom which is like a danger sign in the patients. Pneumonia symptoms are fever, cough and breathlessness. सांस फूलना, तेज से सांस फूलना. That can lead to certain symptoms like ARDS और मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है. एंड देन सिंस देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट, then we may lose the patient if the patient develops the complications like pneumonia, ARDS or multi-organ failure. But again, the number of those patients is very less compared to the mild or moderate cases. Right. Another caller now joins us from Greater Noida. Right. Hello. Right. Hello, Anju. Anju joins us from Greater Noida. Anju जी, आपका सवाल कीजिए. हाँ, हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्ते. हाँ, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कल से किसी एरिया में लॉकडाउन को रिलैक्सेशन होगा, तो जो लोग ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो वो ऑफिस जाने के बाद ये घर आकर उनको क्या सेल्फ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा? राइट. डॉक्टर विक्रम? नहीं, सेल्फ क्वारंटाइन सिस्टम में नहीं रहना पड़ेगा. इसके लिए भी गवर्नमेंट से एडवाइजरी जारी की गई है कि घर से जब आप ऑफिस से घर आएं तो बेहतर ये होगा कि दरवाजे आप पहले घर पे फ़ोन कर दें कि आप पहुंच रहे हैं, घर पहुंचने से पहले, और दरवाज़ा खुला रहे और आप अपनी जो चीज़ें हैं, मोबाइल, फ़ोन, चाबी, पेन, जो भी आप जो आपका पर्स है, वॉलेट, जो भी चीज़ें हैं वो आप अलग से डब्बा रखिए दरवाजे के पास, जिसमें आप उसको डाल दीजिए. उसके बाद आप अपने जो फुटवेयर या जूते चप्पल जो भी पहने हैं उसको उतार के किनारे रख दीजिए. और फिर उसके बाद सबसे पहले जा करके जो कपड़े आपने पहने हैं उसको आप बदल लीजिए और उन कपड़ों को आप धोने में डाल दीजिए. और फिर उसके बाद अपने हाथ और मुंह अच्छे से धो के आप फिर अपनी चीज़ों को सैनिटाइजर से पोंछ दीजिए और फिर उनको आप ले जाइए. उसके बाद ही आप परिवार के किसी सदस्य से मिलें. तो ये चीज़ें जो हैं इसको आप फॉलो करें तो इससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होगा. और अगर कोशिश करें कि जो कपड़े आप जो पहनते हैं वो सिर्फ एक कपड़ा एक ही बार दिन में पहने, ताकि उसको अगले दिन रिपीट ना करें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप इस संक्रमण या इन्फेक्शन से बच सकते हैं. यही चीज़, जैसे हम चूँकि डॉक्टर्स हैं, हम तो डेली हॉस्पिटल जाते हैं और घर जाते हैं, तो यही चीज़ें हम भी फॉलो कर रहे हैं. ये एक नॉर्म होना चाहिए. जब लॉकडाउन खुलेगा या इवन 20 के बाद कुछ लोग ऑफिस जाएंगे
तो ये चीज़ें फॉलो तो करनी ही होंगी, तो इस वायरस को घर पे लाने से रोकने के लिए। राइट। डॉक्टर रविकांत, वेल बहुत से बातें, a lot of information is being spread about this disease, and there is this sense that drinking hot drinks, tea, coffee, this helps. Is it true? देखिए, पहली बात ये कहना चाहेंगे, जो भी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम, ये WHO की रिकमेंडेशन है कि इसकी टेस्टिंग हो जाने की। अब अगर हम डाइट की बात कर रहे हैं तो हमारे गले में हमेशा ही बैक्टीरिया वायरस बैठे रहते हैं, इवन नॉर्मल है। तो अगर हम कोई चीज ठंडा खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बीमार हो जाएं, लेकिन अगर आप उसके लिए ससेप्टेबल हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप थोड़ा उसका गर्म पानी पी लें तो वो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि डाइट में आप एक नॉर्मल डाइट लें, जिसको नॉर्मल डाइट को हम लोग कहते हैं रेनबो डाइट। 7 रंग का खाना खाएं और आप स्वस्थ रहेंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे खाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज़ टोटली मना है। हाँ, ये जरूर है कि कॉमन सेंस को हमेशा इस्तेमाल करें। राइट। Common sense is the need of the hour, as the lockdown is likely to, ease from tomorrow onwards. Joining us now, another caller from Pune, Sagar. Sagar ji, namaste. आपका सवाल कीजिए. So I'm an IT engineer. So in our office premises, there are 4 or 5 multinational companies, and everyone is about the strength of 3,000 or 2,000 above that. So now my question is, how once the lockdown is over after 3 days, so how we can follow the social distancing over there? Because our country area is a common for the whole building. So all these things is in this cases, how we can follow the social distancing? And if you see the Pune traffic is more, on the signals also we are not even having that kind of Right. He works in a multinational company में काम करते हैं. How is it possible to maintain social distancing is his question. 3,000 लोग जब एक ऑफिस में काम करते हैं, it's so easy to forget, See, these are extraordinary situations, and extraordinary situations require extraordinary measures. पहले जैसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको बेशक 50% स्टाफ को लाएं, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करें, जैसे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं हमारे लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको भी सभी स्टाफ को नहीं बुलाया जा रहा है। 50% ऑफ द स्टाफ इज बीइंग कॉल्ड। वैसे ही प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको भी गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, सो दैट ऑल ऑफ देम डोंट कम एट वन टाइम. Probably 50% staff comes, and even in the office they have to maintain a social distancing. The positioning of the staff, or even in the canteen, the positioning should be such that there should be a distance of 6 feet in between the staff. See, this cannot be a normal situation like before. This you have to understand now. This is an extraordinary situation and you have to take certain measures. अब वो पहले ऐसा था, अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमें करना ही होगा. Right. We've come to the end of the show. Well, your final words, your final message to, from all our experts, we'd like to take a few final words at the end of the show. Dr. Vikram first. I think what I would say finally is that this is some infection. So this is a disease or an infection that is likely to stay with us for quite some time, and we have to change the way we live, our lifestyle, our social interaction, the hygiene, hand hygiene, self-hygiene, and we should learn from this lockdown period what we have gathered, and we have to continue to practice the same for a very long time in the coming future to prevent developing this infection. Quickly, Dr. Ravikant, very quickly a few words from you. 90% से ज़्यादा जनता को कुछ नहीं होगा, 5% को सिर्फ हो सकता है ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़े. Considering 95% population will be safe, चिंता ना करिए, लेकिन सरकार की हिदायतों का पालन कीजिए.
Right, right. Well, we've heard from all our experts. Thank you very much, Dr. Islam. Thank you very much, Dr. Vikram, as well as Dr. Ravikant, who joined us on Skype. Thanks to all our experts and to all our viewers for calling in. With that, it's a wrap on this edition of Dr. Speak. Thanks for watching. Namaskar. दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर